حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ناشکری نہیں کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ دعائیں تو نصیب سے ملتی ہیں، اور پھر وہ دعائیں کیسے رد ہو سکتی ہیں جو دعائیں اللہ نے خود تمہارے دل میں ڈالا ہو۔ کیا پتہ کہ تمہارا صبر ہی اللہ کو راضی کر لے اور تمہیں وہ سب مل جائے جس کے لیے تم رو رو کر دعائیں کرتے ہو۔ اپنے من پسند چیز کو پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر مجھ پر اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ یقیناً اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اسی لیے تو تمہارا دل انتظار سے نہیں تھک رہا ہے۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، اور یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ تمام بہترین فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں بھی بہترین فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگا۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر اس سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ سے مانگنے کے بعد قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر سے ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے، وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور جب تم پورے دل سے خود کو خدا کے سپرد کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی۔ آغاز میں تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچانے کی امید رکھتا ہے، اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کو پورا ہونا ہو۔ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو، اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا یقین۔ اور تم نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ یہ مت سوچنا کہ تمہارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یاد رکھنا کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اسی لمحے میں تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب فوراً نہ ملا کریں تو پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندے کو آزماتا ہے اور پھر اس کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ اللہ کو ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعا لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔
सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा रब ही है जो तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। 3 लोग जब आपके सामने बात कर रहे हों तो उन्हें मत रोके। नंबर 1 वालिदैन, नंबर 2 बच्चा और नंबर 3 गमज़दा इंसान, क्योंकि उनका दिल बोल रहा होता है। अगर तुम्हें कम उम्र में ही बहुत परेशानियां आ रही हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा रब तुम्हें बहुत नवाजने वाला है। नमाज पढ़ा करो, कोई मिले या न मिले अल्लाह मिल जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। मेहनत का फल और मुसीबत का हल, आने वाला कल सब अल्लाह के हाथ में होता है। अगर इंसान को यह मालूम हो जाए कि उसने कब, कहाँ, कैसे, किस किस को अपनी ज़बान से तकलीफ़ दी है तो वह हमेशा के लिए खामोश हो जाए। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा घर नहीं, बल्कि घर का माहौल अच्छा और नेक होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र गुजरती है एहसास होने लगता है कि वालिदैन हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। रोता तो वह इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में न तो शर्म होता है और ना ही पानी। तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी बड़ी क्यों न हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। इंतज़ार के अजियत के बाद ही तो याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। जिसे तुम सज़ा समझ रहे हो उस देरी में तुम्हारे लिए बेहतरी छुपी हुई है। इस रंग बिरंगी दुनिया में खुद को अल्लाह पाक के रंग में ढाल लेना ही असल कामयाबी है। कितनी अच्छी बात है ना, कोई अल्लाह पाक के लिए सब छोड़ देता है और कोई अल्लाह पर ही सब छोड़ देता है। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। इस्लाम इतना खूबसूरत मजहब है कि मुस्कुराने पर भी आपको अज्र मिलता है, यहाँ तक कि गुस्से के हालत में खामोश रहने पर भी। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज मेरे अल्लाह के पास है। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर दे तो उस पर यकीन रखना, क्योंकि यहाँ से 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वह तुम्हें थाम लेगा या फिर तुम्हें उड़ना सिखा देगा। साथ चलने वाले मुखलिस हों तो बुरे वक्त में भी लुत्फ़ उठाया जा सकता है। ज़िंदगी के सफ़र का सबसे अच्छा हमसफ़र अच्छा अमल है, जो कब्र में भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता है। या अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि कौन कितना परेशान है। या अल्लाह, हम सब की परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। ऐ मेरे रब, मुझे तन्हा न छोड़, तेरे सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। मुझे दुखों और परेशानियों से निजात दे और मेरे मामूलात आसान फरमा दे। अल्लाह को छोड़कर किसी ऐसी हस्ती को न पुकारो जो तुझे न फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान। अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में से हो। लोग हमेशा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सोचते हैं, इसलिए उन्हें वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वह है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वह जो मैं चाहता हूँ तो फिर होगा वही जो तू चाहता है। कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक वह बड़ी हिकमत वाला है। मुकद्दर में जो है वह मिलकर रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त का नमाज न छोड़ना।
दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत उसके पास होती है जिसके माँ जिंदा होती है। वह रब्बे कायनात ही है जो उठे हुए हाथों की लाज रखता है। असबाब साथ नहीं है मगर यूं लगता है जैसे खुदा कोई मौजज़ा ज़रूर करेगा। ज़बान की हिफाजत करो, इज़्ज़त और जिल्लत का यही ज़िम्मेदार है। अपने इरादों में मुखलिस रहो तो तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तन्हा इंसान को कभी तन्हा न समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। वालिद चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों न हो मगर फिर भी घर का सबसे मजबूत सुतून होता है। परवरदिगार उस सुतून को कभी कमज़ोर मत होने देना। परेशानी अपने साथ आसानी भी लाती है। मेरा अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। बदलते हुए रवैयों की परवाह न करें, क्योंकि लोग रोज़ाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। बातें तब तक समझ नहीं आती जब तक वह खुद हम पर न गुजरें। बेखौफ होने के लिए बाकिरदार होना ज़रूरी होता है। जो इंसान अपनी किस्मत पर खुश होता है, दर हकीकत वही खुशकिस्मत होता है। जिसका शकल इंसानों वाली हो, उसकी मदद करते वक्त उसका मजहब न पूछा करें। ज़िंदगी की उलझनें शरारतों को ख़त्म कर देती हैं और इंसान समझता है कि वह समझदार हो गया है। कभी कभी रास्तों को नहीं, खुद को बदल लेना बेहतर होता है। लोग आपको छोड़ देते हैं जब आप उन लोगों के आदी हो जाते हैं। नाउम्मीद इंसान हर अच्छा मौका गंवा देता है, मगर पुरुम्मीद इंसान परेशानी में भी मौका तलाश कर लेता है। अच्छे इंसान की निशानी यह है कि यह उन लोगों की भी इज़्ज़त करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फ़ायदे या नुकसान की तवक्को नहीं होती है। अगर चाहते हो कि खुशियाँ तुम्हारे घरों को दस्तक दें, तो यतीम और बेसहारों का सहारा बन जाओ, ना ख़त्म होने वाली खुशियाँ मिलेंगी। बद इखलाक साफ़ कपड़ों को कीचड़ से ज़्यादा नापाक करते हैं। अच्छी आदत का मालिक नेक और पारसा औरत किसी फ़कीर के घर में भी हों तो उसे भी बादशाह बना देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी का दवा न बता दूं? सुन लो कि तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा इस्तग़फ़ार है। अगर तुमने हर हाल में खुश रहने का फ़न सीख लिया तो यकीनन तुमने दुनिया का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। इंसान को हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए। ऊपर देखने से एहसास कमतरी का एहसास होता है, जबकि नीचे देखने से इंसान अपने रब का शुक्रगुजार होता है। कर लें, कहीं भी मसरूफ़ हो जाएं, लेकिन उस शख्स की कमी पूरी नहीं हो सकती जिसकी ज़रूरत दिल को होती है।